الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سے مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ بلند آواز سے پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حسین سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، حسین سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جس دل میں نہیں عشق شہدائے کربلا، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ کیونکہ جو دہلتی آپ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ہوا حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین۔ کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم لوگ محرم منا لیے، مرغا تھا جمع کر کے کھا گئے، ڈھول ڈمکا تھا پیٹ کے پھوڑ دیے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب پورا محل پورا سال اب ہیڈ فون لگا کر کے گانا سنو اور ماتھا ہلا۔ ہم لوگ یہی کرتے۔ محرم آیا، جتنا یاتال ماتال پرینکر کپار میں پٹی مان کے یا حسین یا حسین یا حسین، اور سو ہوش نہیں رہا تھا کہ کدھر پاؤں رکھ رہا ہے۔ ایک لڑکا تو اتنا پی کے دوڑ رہا تھا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پاؤں میں نلی میں پھانسی گرا، سمجھتا نہر فرات کے قریب گرے۔ ہمارے نہر فرات نہیں بیٹا، تم کو وہاں ڈھیر میں گر گیا۔ ارے اٹھو رے، کچرا کو نام میں کہے بلمڑیا مار۔ عجب عجب ملے گا محرم۔ امام صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کیے اس پروگرام کو سجانے میں، اور یہ آپ لوگ سننے میں آئے کہ پہلی بار کر رہے ہیں شہید اعظم کا جلسہ۔ ہر بار کیجئے۔ کبھی جیلا پاپور میں سب سے سندر خوبصورت بیوٹیفل بہتر آپ ہیں، کیونکہ ذکر شہادت آپ سن رہے ہیں۔ آپ تو کربلا جا نہیں سکو گے، لیکن ذکر کربلا سن لو گے تو کربلا کا یاد آ جاؤ گے۔ کچھ باتیں آج آپ کو ہم بتا کے جائیں گے۔ تقریر تو میری یوٹیوب پہ آپ لوگ بہت سنے ہوں گے، میری بہت ساری طریقے کی تقریر ہوتی ہے، 3-4 کوالٹی کی تقریر ہوتی ہے۔ کربلا کے کچھ ٹاپک بتا دیں گے کہ یہ پس منظر کربلا ہوا کیوں تھا، اور آج ہمارے محرمی لوگ کیسے مناتے ہیں۔ آج کل جتنا نوجوان ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، چلیے ادھر کچھ جیلے سے ہوتے ہیں، گریڈی ہزاری باغ میں علاقے میں برابر دورہ کرتے ہیں، پورا محلہ سجا دیتا ہے۔ ایک جگہ تو کہہ رہا تھا کہ حضرت ایک عورت نے دو چار اور کے آگے پوچھنے لگی کہ جھارکھنڈی بابا محرم کے چاند دکھانے کے بعد سنتے ہیں کھاٹی میں سدنا چاہیے، ہمیں تب گھاس میں چڑھ جانا چاہیے۔ اچھا کھٹیاں میں سدے گا کیا کرے گا تو؟ پر حضرت سنتے ہیں مچھلی نہیں کھانا چاہیے، ہم نے تو مگر مچھ کھاؤ۔ اچھا محرم میں مچھلی نہیں کھائے گا کیا کھائے گا؟ یہ کون کتاب میں لکھو؟ عجب عجب سوال کرے، عجب عجب ماحول ہے۔ چونکہ محرم آتے ہی مسئلہ شروع،
तब तक ये आदमी आया कि झारखंडी साहब, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? हम बोले गर्दन में जबह करते हैं। अच्छा मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? अच्छा मुहर्रम में मुर्गा खाओ, मुर्गी खाओ, मछली खाओ, पोला खाओ, बिरयानी खाओ, रोटी खाओ, जितना चाहना सब खाओ। मुहर्रम भी मना हम लोग किए आज तक। लाठी घुमाओ, तलवार घुमाओ, खासा घुमाओ, छुरी बैठी चाकू सब घुमाओ। नहीं है तो कुल्हाड़ी घर में है ना लकड़ी वाला, वो भी घुमा, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम बंद मत करो, जिंदा रखो, लेकिन दायरे इस्लाम में रखे रखो। मेरे इमाम से यजीदियों ने कुछ नहीं मांगा था, ताए हुसैन सिर्फ अपना एक हाथ दे दो, समर्थन दे दो, वोट दे दो, परस्तार मान जा, बादशाह मुझे मान ले। मेरे इमाम फरमाते हम तुझे नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो सहाबी का बेटा है, हम भी तो कुरान पढ़ते हैं, मुझे क्यों तुम नहीं मानोगे बादशाह? कहा हम तुझे नहीं मानेंगे। कहा क्यों? कहा तुम अय्यार हो, तुम शराबी हो, तुम जानी हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, तू गद्दार हो, तू झूठ बोलता है, हम तेरे हाथों पे हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो उमर मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो यसर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू देना होगा। मेरे इमाम फरमाते ये सब तमाम ले लो, लेकिन हाथ नहीं दे। बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, हाथ ही मांगा था यजीद। हुसैन एक हाथ मेरे हाथ पे दे दो, मुझको मांग दो। मेरे इमाम ने कहा नहीं मानेंगे। कहा हुसैन अगर हाथ दे दोगे तो बेटा बच जाएगा तेरा, अगर हाथ दे दोगे तो तेरा भांजा बच जाएगा, हाथ दो तो खानदान बच जाएगा। मेरे इमाम फरमाते नादान हाथ देना होता तो मदीने में रख के दे देते, हाथ देना होता तो मक्का आए तो दे देते, हाथ देना होता करबला आए तो दे देते, हाथ देना होता जब पानी बंद किया तो दे देते। हाथ देना नहीं है, इसीलिए तो मैदान करबला में खड़ा हो गया। और क्यों नहीं दिया? ए इमाम आपने ऐसा क्यों किया? आप अगर एक हाथ देते तो आपके जवान बेटा बच जाता, आप अपना हाथ दे देते तो आपके जवान कासिम बच जाते, आप बेटा आप अपना एक हाथ दे देते तो आपके मासूम अली असगर बच जाते, आप एक हाथ दे देते तो अब्बास का बाजू बच जाता। ए इमाम आपने हाथ ना दे के खानदान दे दिया। मेरे इमाम मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन 61 हिजरी दुश्मन के बीच नारे फरात के करीब ऐलान फरमाते, ए नाना की उम्मतियों यजीद शराबी है और मैं करबला में शराबियों को सपोर्ट करने नहीं आया। जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया, यजीद उसी इस्लाम को दागदार करना चाहता है, उसी इस्लाम को पलटना चाहता है, नमाज में तब्दीली चाहता है, शरीयत में बदलाव चाहता है। हम पूरा खानदान दे देंगे लेकिन नाना के शरीयत पे आंच नहीं आने देंगे। और मेरे इमाम मैदान करबला में खड़े होकर ये ऐलान किया कि तू शराबी हो यजीद, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होंगे वो शराबी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हुसैनी कभी शराब पी ही नहीं सकता है, इसको नोट कर लो गुलजार बाग वाला, है ना? हुसैनी कभी शराब पी ही नहीं सकता है, और शराब पीने वाला कभी हुसैनी बन ही नहीं सकता। मेरे इमाम अपने बेटे के सर पे पगड़ी बांध करके करबला लेके गए थे इस्लाम बचाने, और हम लोग अपने बेटे के सर पे पगड़ी मार कर ले जाते हैं ससुराल में हीरो होंडा लाने। फर्क देखिए, इमाम बेटे को करबला ले गए थे पगड़ी बांध करके, अली अपने भतीजे को ले गए थे, चल बेटा पगड़ी बांध चल करबला नाना के दिन बचाए। और हम लोग क्या करते हैं, बेटे के सर पे पगड़ी बांध कर, शेरवानी पहना कर, हुपा जुपा लगा कर, गाड़ी में बैठा कर एकदम चले हैं। और कैसे चलते हैं? डीजे ले करके, एक झोला पड़ा था 150 आतंकवादी पहुंच गया बेटी घर लूटने के लिए आ करके, और फिर खाना उना खाने के बाद गोदरेज निकालो, अलमारी निकालो, पूरा हंडिया करके बर्तन निकालो, लेके चलो लूट के चला गया। होता है कि नहीं? ये हाल है आपकी। या हुसैन का नारा लगाते हो रात भर, या अली का नारा लगाते हो। अरे मेरे इमाम ने अपने बेटे को ससुराल में नहीं भेजा था, करबला में लुटा दिया। अगर
का बेटा जब मैदान में कटा है तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये मेरे भाई हैं, समाज की एक बहन न बचा सके, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान है, एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं हुसैनी बनना। हम लोग हुसैनी बनते हैं, मुहर्रम का चांद दिखाया, एगो बांस जुगाड़ किया, 5 मीटर कपड़ा, 3 गो फुटल ढोल, एगो मुर्गा, डम 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 डम, हुसैनी बन गए। और वो नाच और कूदो, डीजे बजा के डांस कर रहा है, सिकड़ी पहन के डांस कर रहा है, कान में हेडफोन लगा के डांस कर रहा है, मुंह में गुटखा, दिल में फुटका लेके घूम रहा, या हुसैन या हुसैन। और वह जगह एक लड़का तो पेशाब कर रहा था, यही मुहर्रम में 7वीं 8वीं कई जलसे से हम लोग जा रहे थे। बोला बेटा तुम कपाल में सर में पट्टी बांधे हो और बैठे हो तो लोटा उटा कहाँ पेशाब कर रहा है, पानी उनी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सुना भैया हुसैन या हुसैन या हुसैन, हमारे पानी कहाँ है भैया हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमारे बेटा अगर ऐसे हुसैन को चालू रहा तो कोरोना की 3री लहर क्या 4थी लहर क्या 3री लहर क्या 4थी लहर आ जाएगी। ये कौन है ऐसे डुप्लीकेट हुसैनी? उनको कहो कभी घर मस्जिद जाना, मसल्ला बिछाना, सजदा करना, वापस घर आना, माँ बाप की खिदमत करना, महफिल में बैठना, अदब करना, और माँ को देखना, कदर करना, समाज में बोलना तो इंसाफ करना। यही हुसैनियों की पहचान है। आजकल के लोग नकली हुसैन, असली हुसैनी बनोगे तो सजदा करना होगा, हुसैनी बनने के लिए इबादत करनी है, हुसैनी बनने के लिए तलावत करना है। हम लोग ये रात रखे हैं पूरे इलाके में, जगन्नाथ रात, आज बल जागने की है, आज बड़की चौकी, आज छोटी चौकी, आज मुर्गा है, आज डंडा है, आज हो हल्ला है, आज डीजे के डांस है। और इलाके मतलब मुहर्रम। और कुछ लोग कहता है बरेलिया लोग बड़ी शिरक बिदत करता है, बड़ी नाचता कूदता फांदता, जबकि नाचना गाना मसले के आला हजरत में हराम। चाहे शादी के मौका पे नाचो, चाहे मिलाद के मौका पे नाचो, चाहे मुहर्रम के मौका पे नाचो, चाहे खुशी के मौके पे नाचो, नाच गाना डीजे डांस मसले के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम। लिख लीजिए कागज पर, जैसे कब्रों को सजदा करना हराम है, कब्रों को पूजना हराम है, कब्रों की पूजा नहीं की जाती, कब्रों की जियारत की जाती है। जियारत करना सवाब है, पूजना हराम है, और जो पूजेगा वो मुशरिक होगा, मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। याद कर लो, नोट कर लो, मस्जिदों में जाना, सजदा करके आना, माँ बाप को देखना, खिदमत करना। सुन लीजिए, हम जानता है जिला से आपके मोहल्ले में आए हैं, लेकिन मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं है, आपके इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, आलिम के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ झोपड़ी में रहती है, बेटा मुफ्ती आलम की जो वीडियो सीओ बन जाए, लेकिन उसी झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों तले जन्नत। तुम जन्नत कहाँ ढूंढते हो? ये लोगों, मजलिस सजाने से पहले, मिलाद मनाने से पहले, इबादत करने से पहले, जमात में निकलने से पहले, तबलीग करने से पहले, इज्तिमा में जाने से पहले, जिहाद करने से पहले, इबादत करने से पहले, तिलावत करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, मदीना जाने से पहले, मक्का जाने से पहले, अपने घर में रहने वाले उस वालिदैन माँ बाप की खिदमत कर लो, उनको खुश करके अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप नाराज है, अरे या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मेरे इमाम का मकाम जानना चाहते हो, करबला का मंजर पे जानना चाहते हो, करबला का एक एक मंजर। आइए मुबारक भाई,
पूरा थकिया के सरिया के आ गया। आइए जो मिला था अब हम खाली वो हरा गोरी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। देखो एगो मिला है मुझको भी। हाँ, मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, बहुत मौला हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम कहते हैं चुपचाप सुन जाए। तकरीर समझ में आए तो हाथ मत उठाना, पाँव उठा के चल देना। इनकमिंग चालू रखोगे तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ। बीच बीच में पूरा मजमा माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद 12वीं आटा के नाम पे अपने हाथों को उठाया है महफिल पाक में बैठ के, मौला 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता फरमा। अब जो नहीं उठाया होगा वो लोग सोचता होगा या अल्लाह ही मौलाना हाथ उठा के दुआ दे दिया, मुहर्रम का चांद है, 12 बजे के बाद है, हो सकता है दुआ कबूल हो जाए। तो हाथ उठाने वालों की रोजी में और रोजगार में तो कमाई में बरकत हो जाएगी। हम हथवा नहीं उठाए, मेरा क्या होगा? हाँ, तो एक चांस ले लीजिए। अब मत सोचिए कि मौलाना चांस नहीं दिया, बाद में ये मत पछताइए कि चांस नहीं दिया। एक चांस लेके हाथ को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? हाँ, जुमा 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 आता मुसलमान कितनी नमाज पढ़ता हमको नहीं पता है। सप्ताह में एक दिन नमाज पढ़ने जाएगा, वो भी बीवी की समर्थन मिले तब। हाँ, ऐसे नहीं जाएगा। बीवी बेचारी जुमा के दिन 9 बजे से परेशान, पहले अपने शोहर के कपड़ा खींच के सूखने दो, लुंगी खोज के ला दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा पानी भर दो, लगता डायरेक्ट मक्का जाएगा। अजीब नमाज। हाँ, बहुत जगह तो बीवी टोपी खोज के ला दो, पजामा कुर्ता पहन लिया, अभी टोपी कहाँ, टोपी अभी बेचारी खोज रही इधर से। हाँ, टोपी नहीं मिले जुम्मे के बाद तुमको बताए माने अल्लाह ही कौन नमाज़ी रे बात, कौन नमाज़ी जुम्मा पढ़ने अपने जाए, अभी भी टोपी खोज के ला के होता है ना। लेकिन आपके गुलजार बाग में ऐसा नहीं होता। आप सब नमाजी लोग दूध के धौल है, आप बढ़िया है, झुमका पार की बात बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो मेरे इमाम मैदाने करबला याद रखे गए नहीं थे, बुलाए गए। अगर इमाम करबला लड़ने जाते तो ज़ैनब को लेके नहीं जाते, अपनी बेटी सकीना को लेके नहीं जाते, मासूम अली असगर को लेके नहीं जाते, बीमार ज़ैनब को लेके नहीं जाते, तो बड़े मुस्लिम को लेके नहीं जाते। अगर लड़ने का इरादा होता तो पहलवान लेके जाते। मेरे इमाम को बुला लिया था हर मैदान कूफा में, कूफा के शहर के आगे नारे फरात के बगल में तक मैदान करबला में चारों तरफ घेर लिया था। हर एक दो नहीं, दो चार नहीं, दो 4,000 नहीं, 22,000 फौज ने घेरा था। हर मात्र 72 आदमी था। इतिहास की लड़ाई में, इतिहास के जंग में न कभी ऐसी जंगें हुई है, न सुबह कयामत ऐसी जंगें कभी होगी जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, जिसमें बीवी भी है, जिसमें बेटी भी है। वो सकीना जो मैदान करबला में 6 साल की है, वो भी फातिमा के खानदान की औरत है, मैदान करबला गई थी। मकसद क्या था? ताकि दीन बचाया जाए, ईमान बचाया जाए, कुरान बचाया जाए, शरीयत बचाया जाए, सजदा बचाया जाए, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कितनी देर सुनिएगा? अरे कितनी देर तकरीर मेरी हो जाए। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, माहौल आपका है, मिजाज मेरा बन रहा है। मैं काफ़ी थका हूँ, लेकिन आपके इमाम साहब ने असरार किया। मैं 3 बार सफ़र में था, बिहार के बहुत दूर में थे, 6, 7, 8 घंटा सफ़र किया तब मैं पहुँचा अपने यहाँ। फिर वहाँ से गाड़ी लिए तो फिर 2.5 घंटा में 150 किलोमीटर का सफ़र किया। मैंने कहा कि हज़रत से वादा किया हूँ तो जाना।
वादा कहेंगे तो निभाना पड़ेगा, नहीं होता है। आजकल तो लड़का लोग वादा करता निभाता भी नहीं। आजकल लड़का इतना गड़बड़ा गया है, इतना बिगड़ा है, 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था उतना 2 साल में बिगड़ गया। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मदरसा बंद, है ना, सब कोचिंग बंद, लेकिन मोबाइल चालू, सब बंद है। अजब अजब लड़का मोहल्ले में मिलेगा। हम लोग हैरत है कि इतनी तकरीर हम लोग की हो रही, कम तकरीर करना था। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम टस से मस नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं बबुआ, बल्कि दिल में घोला मार दिया। बहुतों के दिल में 3 इंची ढाला कर दिया है, इधर से बात जाती है, उधर से घूमते वापस आ जाती है। वरना एक जलसे में बैठोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अभी मुबारक भाई कम अच्छी ना खानी हो रही थी, आवाज में कशिश, बांग्ला भोजपुरी अब ये खत्म पड़े, वो भी तमाम जुबान उनके पास है। उसके बाद लास्ट में अंग्रेजी पढ़े, जो कोई समझ नहीं। हम लोग अंग्रेजी कितनी समझते हैं? 3 बार, प्रॉब्लम, सॉरी और बीजी, 3 को रटा है। कहाँ जा रहा है? अरे बहुत प्रॉब्लम है, क्या बात है, बहुत तेजी में है, बहुत बिजी। किसी को धक्का मार दे, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 को रटा, 3 को काम चला रहा। उसके ज्यादा कहाँ मुसलमान पढ़ता ही कहाँ, पढ़ेगा तब न पढ़ेगा। मुसलमान को खोजो तो राजमिस्त्री, वाल पुर्ती, टायर दुकान, फैला दुकान, और वो भी मिस्त्री इतना खत्म मिस्त्री है कि इधर से ढलाई किया उधर से भसक, सबसे जाके चढ़ा देगी। मालिक भाई मिस्त्री, अरे पेरवा कसम चढ़ा हो, अरे वो कल खोल जोड़ दे। वो इस सब हाल में काम करो तो बेहतर करो, और अपने बाल बच्चों को तालीम दे दो, शिक्षा दे दो, इल्म दे दो, ताकि करबला के नाम पे झंडा गाड़ के डीजे के डांस नहीं करेगा, बल्कि झंडे को देखेगा। तेरा बेटा देखेगा, ये पर याद आएगा, भतीजा तेरा झंडा देखेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे देखेंगे, उसे तो इसे अब्दुल याद आएगा, बूढ़े देखेंगे, इमाम याद आएगा, घराना देखेगा, करबला याद आएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हम लोग तो खाली तकरीर सुनते हैं और हम लोग को बात थोड़ो मानते हैं। सबसे हल्का, सबसे सस्ता हम ही लोग मौलाना मौलवी बचे। हम लोग से सस्ता दुनिया में कोई डिपार्ट है ही नहीं। सब डिपार्ट में 8 घंटा ड्यूटी, कोर्ट में 8 घंटा, रेल में 8 घंटा, ब्लॉक में 8 घंटा, कोर्ट कचहरी मास्टर ड्यूटी करे 8 घंटा, और मौलाना मस्जिद में 24 घंटा। ये कानूनवा जो बनाया उसको 13 साल से खोज रहे हैं। 13 साल से खोज रहे हैं। पूरी दुनिया काम करे 8 घंटा, और इमाम को 24 घंटा, और फातिहा करा के 10 घंटा। अभी एक जगह हम फातिहा करने गए, उसको क्या पता था कि मौलाना झारखंडी है। हम मधुपुर से शहर से निकल के जा रहे थे, प्रोग्राम एक औरत उधर से आई, हजरत थोड़ा सा फातिहा कर दीजिएगा। हम बोले इमाम साहब को ले लीजिए। मन नहीं, आप ही चाहिए। हम बोले चलो, फातिहा पढ़ के हम निकलने लगे। हाँ मासा रुकिए 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 रुकिए, मैंने कहा अरे रुकिए हजरत। हम रुक गए, उधर से 10 रुपया लेके आए, बोले हजरत इसको रखिए ना, चाय पी लीजिएगा। हम बोले हम चाय नहीं पीते, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, 10 टका नहीं 100 टका। अच्छा 10 टका हम लोग जिंदगी फातिहा करें। हजरत इसको रखिए, 10 टका रखिए ना, इसको चाय पी लीजिएगा। हमने मुर्गी इतना सस्ता, खाली चाय पिएगा। हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, लाओ सब होता है। हजरत फातिहा कीजिए, पहले नहीं देगा, जब निकलिएगा गेट में ली। तब ने इमाम एक हम घुसा फातिहा करने, देखा कि प्लेट के बगल में शीनी बगल में 5 रुपया रख के इमाम साहब घुसा, ये घर वाला बोला इमाम साहब बहुत जल्दी कर दिए, बल्कि 10 रुपये रात भर बस रहोगी तो हमने मतलब 5 टका की रात भर वैसे रहे तो 5 रुपया दिया। एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कितना देता है? ठेठ जो करके 6000 5000, क्या आपको कितना देता है? 7000 किसी सूरत से बढ़ा तो 7000 दे रहा है, तो 230 रुपया, 230 रुपया, 24 घंटा 230 टका।
12 घंटा में उसको जोड़ो तो 165 टका होता है। तो 12 घंटा खटा करके 165, ये तो आप अच्छा दे रहे हैं 7,000 बहुत, तो लेकिन ये भी कम है। इस महंगाई में एक इमाम की हाजिरी एक मामूली लेबर की हाजिरी होनी चाहिए। जैसे एक लेबर की हाजिरी 300 है मामूली हाजिरी, वो भी कौन लेबर, रोगहा लेबर, बिमिरिया टिबिया लेबर 300, थोड़ा मोटा है 350, उनकी हाजिरी एक इमाम को एक 300 रुपया होता है। अरे इमाम का मकाम पाकोड़ से क्या, महल्ले से क्या पता चलेगा? इमाम का मकाम करबला से पूछो। हे करबला वालों, हम तो अपने इमाम के मकाम नहीं जानते, तू बता। तो हुर फरमाते, मैं देख यजीद के गुरों से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, हुसैन को पकड़ने आए थे करबला में कि हुसैन को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन एक वक्त की नमाज मैदान करबला में हुजूर ने इमाम हुसैन के पीछे पढ़ ली थी। दिल की दुनिया बदल गई, और जब इमाम हुसैन पे करबला में मुसीबत आई तो हुजूर अपने इमाम के कदमों में मुर्तदी बन के जान दे दी। आपको जान नहीं देना है, टाइम पे तनख्वाह दे देना। आप जान दे पाइएगा? जो 10 टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डालता वो जान देगा क्या हजरत? 10 रुपया मस्जिद डब्बा में नहीं डालता है, 6 आदमी डब्बा पटकता, 7वां आदमी 5 रुपया, 8वां आदमी उफ चलो बोला उफ फूका फूकी डब्बे। एक जगह तो सलाम फेर के पैसा उठाता है, बहुत जगह सलाम फेर के पैसा उठाता है। तो गांव मोहल्ला देखिएगा जितने भद्र मानुष चलिए होटल है, सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन के आगे सब बैठेगा और 10 टका ठेकाना, 10 टका नहीं आगे बैठेगा। जब पैसा उठाइए तो शाम मुझे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब मस्जिद जाओ तो 10 रुपया लेके डब्बा में डाल के ही आओ। इसको अलीवार के समझो। तो करबला नहीं जा सकते, जान नहीं दे सकते, गर्दन नहीं बना सकते, लेकिन नाना के दीन को बचाने के लिए आपको दौलत ही तो खर्चा करना होगा। मस्जिद के डब्बे में डालोगे, अकाउंट में आएगा, मुझे नारे गुनारे गुंबद लगेंगे, आजान की सदा होगी, दुनिया कहेगी वो गरीब गरीब है, लेकिन नाना के दीन के बना के खातिर दवाई का हिस्सा लगा चुका। इसलिए हर आदमी 10 रुपया लेके मस्जिद जाना। क्या हजरत? मोड़ में, चौक में, चौराहे पे, ठेला में जाकर के चिकन चिल्ली चाउमीन और जब मस्जिद का डब्बा आता है पटक देता, देना होगा। काहे दोगे? देना होगा तब। और उसको कीजिए सलाम के बाद, अब डब्बा मत चलाइए। आदमी बहुत ढिठा दिया इस पर, इतना टेंट आदमी मिलता है इलाका में, डब्बा पटक देता नहीं देता। एक आदमी उठो और चदरा पतला चदरा डब्बा बनवाओ और उसमें खुचरा पैसा रखो और एकदम मुँह में बस घुमाओ, देना होगा। वो तस्वीर की लक्ष्मण चाचा बाद में तस्वीर पहले देना हो, 10 टका देना हो, काहे देगा? देना क्या हजरत? कौन देगा? क्यों नहीं दोगे? एक सप्ताह 10 रुपया काहे मिलेगा? देना। बहुत आदमी देखिएगा कोई कम उसको है नहीं, हया शर्म जो के पी गया तो आप भी शुरू कर दीजिए उसी तरह मुंह में पड़े घुमाई देना। कल इस्लाम बचाने के लिए मेरे इमाम का बेटा मैदान करबला पहुंचा, घोड़े पे चढ़ा, तलवार लिया, नतीजे से मुकाबला किया, लड़ते गए। जवान बेटा है, मैदान करबला है, जुमा का दिन है, 100 हिजरी है, बात 56 साल है, मैदान में खड़े देख रहे हैं। ए बेटा आगे बढ़, अली अकबर जवान है, घोड़े पे चढ़ के आगे बढ़े, लड़ने लगे, लड़ते थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। मेरे इमाम फरमाते बेटा घोड़े से नीचे क्यों उतरा? आगे बढ़ो, घोड़े पे चढ़ो। मेरे इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर 18 साल का जवान फरमाते बाबा अब मुझसे तलवार चलाई नहीं जाएगी, अब मुझसे लड़ा नहीं जाएगा, अब मुझको आगे मत बढ़ाइए। कहा क्यों? कहा बाबा 3 दिन से प्यास हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ, इतना हल्का सूख चुका है कि तलवार चलाने में सांस रुकने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती। ए बाबा अगर चंद कतरा पानी मेरे मुंह में होता, इन यजीदियों को पलट देते। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल
خیمے کو تو جھانک کے نہیں دیکھا، تیرا بھائی زین العابدین بخار سے کرنا رہا، پانی کا مشکیزہ چھسو کا پڑا ہے، تیری بہن سکینہ 6 سال کی زمین میں سو کر کے سسک رہی، تیری پھوپھو بھی آنسو بہا رہی، اب تو مجھ سے پانی مانگ رہا، کہا بابا مانگ نہیں رہا ہوں، تلوار چلاتے چلاتے اتنا ہلکا سوکھ چکا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، چند قطرہ پانی میرے منہ میں ہوتا تو میں یزیدیوں کو پرت دیتے کہ مسلمانوں غور کرو، 56 سال کے بعد امام حسین کھڑا ہے، 18 سال کا جوان بیٹا پڑا ہے، چاروں طرف دشمن نے گھیر کے رکھا ہے، زمین بھی گرم ہے، آسمان سے سورج کی شعائیں گر رہی ہے، چاروں طرف ہو کا ماحول ہے، پردیس وطن ہے، زمین گرم ہے، نہر فرات میں پانی چمک رہا ہے، جوان بیٹے کربلا میں تڑپ رہا ہے، اے مولا یہ کیسا امتحان ہے، اے بیٹا آگے بڑھ۔ میرے امام کے بیٹے فرماتے اب نہیں ہوگا مجھ سے، اب نہیں بڑھیں گے۔ میرے امام فرماتے بیٹا گھوڑے پہ تو چڑھنا ہوگا، تلوار تو چلانا ہوگا، نانا کے دین تو بچانا ہوگا، اے بیٹا آگے بڑھ۔ کہا بابا کہیں سے چند قطرہ پانی ہوتا؟ میرے امام فرماتے بیٹا پیاس لگی ہے؟ کہا ہاں بابا پیاس لگی ہے۔ کہا آؤ بیٹا میرے قریب آ، کہا آؤ بیٹا میرے قریب آ۔ کہا بابا آپ کے ہاتھ میں تو پانی نہیں ہے، آپ قریب مجھے کیوں بلاتے ہو؟ کہا بابا میرے بیٹا قریب آ۔ امام حسین کا بیٹا قریب آتے ہیں، کہا بیٹا اور قریب آ، تھوڑا اور قریب آ گئے، کہا بیٹا اور قریب آ، تھوڑا اور قریب آ گئے، کہا بیٹا بابا بالکل قریب آ چکا ہوں۔ کہا بابا بیٹا پیاس لگی ہے؟ کہا ہاں ہاں بابا بڑی پیاس لگی ہے، ہلکا سوکھ چکا ہے، آنکھیں چنرا رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، اب زمین پہ کھڑا ہونے کی سکتی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے بیٹا میری زبان کو اپنی زبان سے چوس لو۔ اے مسلمانوں غور کرو، ایک جوان بیٹا 56 سال کے باپ کی زبان کو چوس رہا ہے، دشمن دیکھ رہا ہے، وہ بھی باپ جو 3 دن سے پانی نہیں پیا، اس باپ کی زبان کو جوان بیٹا چوس رہا ہے۔ پیاس بجھانے کے خاطر تھوڑی دیر چوسنے کے بعد فرماتے بیٹا اب بتا کیسا لگا؟ کہا بابا تھوڑی تھوڑی پیاس بجھ رہی ہے۔ کہا بیٹا تھوڑی دیر اور میری زبان چوس لو، پانی تو ہے نہیں۔ پھر باپ زبان کو بیٹا اپنے باپ کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ کہا بابا بیٹا اب بتا کیسا لگا؟ کہا بابا تھوڑی تھوڑی پیاس بجھ گئی۔ کہا بیٹا تھوڑی دیر اور میری زبان چوسو۔ 56 سال کے امام حسین باپ کھڑے ہیں میدان کربلا میں، وہ جمعہ کا دن ہے، وہ 61 ہجری ہے، میدان کربلا میں چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے، تھوڑی دیر فرماتے بابا میری پیاس بجھ گئی، اتنا کہنا تھا۔ میرے امام فرماتے اے میرے بیٹے 56 سال کی عمر میں میدان کربلا میں دشمن کے بیچ میں تو نے میری زبان کو چوسا ہے، اور میں اپنے نانا کی زبان کو مسجد نبی کے صحن میں صحابہ کے بیچ میں چوسا تھا۔ اے بیٹا آج زبان تیرے بابا کی ہے کربلا میں، لیکن فیض نانا رسول اللہ ہے جو مدینے سے چلا ہے، اور کربلا میں تیری پیاس بجھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے شاید جو دور کی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، اس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے امام بیٹا لے کے گئے تھے۔ آج ہم لوگ کے رواج دیکھیے، صرف اسلام کے نام پہ ہم لوگ کم نہیں بدمعاشی کرتے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ میرے امام کا بیٹا کربلا کا دولہا بنا تھا، اور دولہا بنا تھا تو ہاتھ میں تلوار لیا تھا، دولہا بنا تھا۔ میرے بیٹے میں امام کے بیٹے کربلا جا کر کے نانا کی شریعت کو یزید نے حملہ کیا تھا۔ میرے امام کے بیٹے فرماتے یزید تم حملہ کرتے ہو ہم جان دے دیں گے، لیکن شریعت میں داغ نہیں آنے دیں گے، اور اسی شریعت کو تم ڈی جے بلا کے داغ کر رہے ہو، اسی شریعت کو تم بلا